So good evening everyone. Welcome in today's lecture. We are going to start the concept of revision. Revision का मतलब क्या होता है भाई? रिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनरीक्षण। पुनर्विलोकन नहीं, पुनर्विलोकन रिव्यू। दोहराना पुनरीक्षण। पुनर्विलोकन का मतलब रिव्यू, रेफरेंस का मतलब निर्देश, रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण, है ना? नॉट दोहराना, रिव्यू का मतलब दोहराना, नॉट दोहराना। शिखा, ठीक है। रिव्यू मीन्स दोहराना, रिपीट, रीथिंक, रिव्यू, रिव्यू। रिवीजन, रिवीजन का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअली मैं समझाऊंगा, देन वी विल कम टू सेक्शन वाइज, देन वी विल सी द लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट। Whenever High Court thinks that the subordinate court is manipulating its jurisdiction or vitiating its jurisdiction, and the subordinate court is not using its jurisdiction in a legal manner, whatever the jurisdiction has been vested to the subordinate court or that court, the court actually is not using its jurisdiction in a true spirit, in a legal manner. So that's why High Court comes into picture, and High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court, and in which no appeal lies thereto. And if such subordinate court appears, so क्या होता है? Sometimes subordinate court may do like this. The subordinate court have passed an order which was actually not under its jurisdiction, or legally it was not correct. But subordinate court has done like this. Subordinate court has passed an order. Means subordinate court has skipped anything or just, took the undue advantage of his jurisdiction. And whatever the provisions have been mentioned, the subordinate court is manipulating that provisions, or the subordinate court is not doing the act according to the provision of the CPC. Means in the provision it is mentioned that the summons should be issued by the court to the defendant within 30 days. है नहीं? Once we institute a suit, तो भाई जितने भी टाइम पीरियड के अंदर सम्मन इशू होगा डिफेंडेंट को. अब being a plaintiff, that I may think like that the court might have issued the summons to the defendant, but court is not issuing summons. Court rejects my suit, and the moment I ask, the court has passed an order for rejection. By passing an order, the court has rejected my plaint. Court has not accepted it. So ultimately, I will ask the question to the court: why have you rejected my suit? The court is saying, no, it's my wish. I am a court. I may reject. Though I have complied all the provisions as per CPC, I have deposited the court fee and I have drafted the plaint in a given format as per the CPC. I followed each and everything, whatever is legal, whatever is mentioned under CPC. I have followed the provisions of pleadings. But still the court has rejected my plaint, or court has passed an order. तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? कोर्ट यहाँ पे अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है. तो जब कोर्ट अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है, और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, पावर मतलब जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई चीज डिसाइड किया और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस्ड था, तो अब हाई कोर्ट उसको, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं. यहाँ पे जो 115 में एक खास बात है, खासियत है कि 115 तभी एप्लीकेबल होगा. 115 shall applicable in such case only where the subordinate court has vitiated its jurisdiction. है ना? ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ पास कर दिया तो गलत है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को कुछ सही नहीं लग रहा है, लॉ नहीं पता है, तो हाई कोर्ट ने मंगा लिया. ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमने पढ़ लिया. लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जुरिस्डिक्शन है, गौर से देखिएगा. टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली, मतलब जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है. सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपने पावर, जो जुरिस्डिक्शन उसको दिया गया, उसका गलत इस्तेमाल किया है किसी भी तरीके से. तो अब हम एक्ट पढ़ेंगे. एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, है ना भाई. आप जो है सूट नहीं एक्सेप्ट कर रही है कोर्ट,
हमने कोर्ट से पूछा भाई आप जो है हमारे कोर्ट को आप हमारे सूट को आप क्यों नहीं आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा हमारी मर्जी है, हमारा कोर्ट है, ऐसे कोर्ट बोल रही है, मतलब अपने जुरिडिक्शन का गलत इस्तेमाल कर रही है कोर्ट। सम्मन नहीं भेजी, मैंने पूछा साहब सम्मन क्यों नहीं आपने भेजा डिफेंडेंट को, नहीं भेजिएगा तो कैसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, कैसे मेरे केस आगे बढ़ेगा, आई एम आस्किंग लाइक दिस, कोर्ट इज सेइंग नो नो इट्स माय विश, वी आर द कोर्ट, इट्स आवर डिस्क्रिशन, बट डिस्क्रिशन तो होता नहीं है, कोर्ट को भेजना होता है सम्मन से ना। बहुत सारे जहाँ पे कोर्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं ले रही है कोर्ट, आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, द कोर्ट इज नॉट एक्सेप्टिंग माय डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, court is saying that this evidence is illegal or we are not going to accept your evidence. I think it will be illegal ना, वो तो फिर ये होगा कि भाई आपने jurisdiction का गलत इस्तेमाल करो। तो ऐसे बहुत जगह पे कोर्ट जो ऑर्डर पास करके अगर कहती है कोई बात, ऑर्डर पास करती है ना, और वो ऐसा ऑर्डर है कि हम जो है भाई अल्टीमेटली मैं तो अफेक्टेड होऊंगा, मेरे साथ अन्याय होगा, और एक ऐसा ऑर्डर है कि मैं अपील में उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। बहुत सारे अपील ऑर्डर हैं जिनके अपील में आप नहीं जा सकते, जिसके अगेंस्ट में मान लिया एक ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास कर दे तो मैं तो फंस जाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो रिवीजन का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ते हैं, हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू, यानी कि कोई भी केस अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है और जिसके अगेंस्ट में आप अपील में भी नहीं जा सकते, तो ऐसे केस को हाई कोर्ट कॉल अपॉन कर सकते हैं। सो हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस व्हिच हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट and if such subordinate court appears to have exercised the jurisdiction not vested in it by the law, और ये देखा गया, हाई कोर्ट ये देख रही है कि भैया ये जो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल इन्होंने किया है इनको लॉ के अकॉर्डिंग वेस्टेड नहीं था इन पे, है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो उनका पिक्यूनी जुरिस्डिक्शन 1 लाख का था, लेकिन वो 2 लाख का केस सुलझा, 2 लाख का केस एक्सेप्ट कर लिया, उसको भी उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया। एक्चुअली दैट कोर्ट वाज नॉट इन अ पोजीशन, court was not having the jurisdiction to decide that case because the subject value of that case was 2 lakh rupees and the pecuniary jurisdiction of that particular court is only rupees 1 lakh rupees, तो अप टू 1 लाख वो कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख का केस वो कैसे डिसाइड कर लें। तो इसका मतलब यानी कि जो जुरिस्डिक्शन को दिया गया था लॉ के तहत वो वेस्ट नहीं था, जो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया उन्होंने। To have failed to exercise the jurisdiction so vested, या जो jurisdiction उनको वेस्ट किया गया था, दिया गया था, वो फेल हो गया, वो उनका एक्सरसाइज नहीं कर पाए वो। To have acted, हाँ तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो है सर वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, दोनों तरह के जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। जुरिस्डिक्शन मींस मे बी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मींस मे बी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मींस सब्जेक्ट मैटर वाला जुरिस्डिक्शन। ओके सर। अगर एक केस था अब वो गाजियाबाद कोर्ट के थ्रू होना चाहिए था, लेकिन मैं दिल्ली कोर्ट में आ गया और दिल्ली कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो मैं ऐसे लाइक दिस द कोर्ट हैज नॉट एक्सरसाइज्ड द जुरिस्डिक्शन वेस्टेड बाय द लॉ, यानी कि वो जो दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी कहां तक थी, दिल्ली बाउंड्री तक ही थी। गाजियाबाद का केस कैसे ले सकते हैं, अगर वो केस लेके सुलझा भी रही है, डिसाइड भी कर ले रही है, तो हाई कोर्ट को अगर संज्ञान में आता है, हाई कोर्ट में कॉल अपॉन दैट केस, ओके, कॉल फॉर दैट रिकॉर्ड ऑफ दैट केस। हाँ ठीक है। और टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल हुआ, और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, मटेरियल इरेगुलरिटी में द सेम मैंने बता दिया कि मटेरियल इरेगुलरिटी हुआ है ना, सम्मन नहीं भेजा कोर्ट ने, I tried my level the best to produce the evidence but court has denied my evidence, है ना, कुछ कोर्ट मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही, बहुत सारे एग्जांपल है। मटेरियल इरेगुलरिटी उसमें आते हैं। जुरिस्डिक्शन इलीगली का मतलब होता है इलीगली बिल्कुल काम कर दिया इन्होंने। हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट, तो हाई कोर्ट फिर उसके बाद क्या करेगी कि केस को कॉल अपॉन करके ऐसा ऑर्डर वो पास कर सकेगी जैसा उसको सही लगता है, डिपेंड्स अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट। प्रोविजन में बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ ए सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट where the order, if it had been made in favor of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceedings। क्या कहने का मतलब है, प्रोविजन में कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है इस सेक्शन के अंडर में किसी भी ऑर्डर को रिवर्स या वैरी नहीं करेगी, है ना, ये जो इस इशू में जो इस इशू को डिसाइड कर रहा है, इन द कोर्स ऑफ ए सूट और अदर प्रोसीडिंग, ये जो सूट चल रहा है या अदर कोई जो प्रोसीडिंग है या कोई सूट है उसके कोर्स में कोई भी हाई कोर्ट जो है किसी भी ऑर्डर को
वैरी नहीं करेगी, किसी भी ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेगी, except where the order, if it had been made in favor of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceeding. ये कह रहे उस केस में अगर मान लिया एक वो ऑर्डर होता, वो ऑर्डर ऐसा है कि अगर हाई कोर्ट उसे पास कर दे तो वो जो रिवीजन के लिए जो बंदा जिस पार्टी ने अप्लाई किया वो उसके केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देगी, उस सूट को डिस्पोज ऑफ कर देगी। तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर उस वाले ऑर्डर की बात हो रही है जो रिवीजन के केस में ऑर्डर पास करेगी हाई कोर्ट, या मतलब कोई और से ऑर्डर की बात हो रही है वेरी और रिवर्स करने की? नहीं, ये कह रहे हैं हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड, यानी कि वट एवर द ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द कोर्ट बाय इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था तो उस ऑर्डर को हाई कोर्ट वेरी नहीं करेगी और रिवर्स नहीं करेगी। और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू, या कोई भी ऑर्डर को जो इशू को डिसाइड कर रहा है उसको वेरी और रिवर्स नहीं करेगी हाई कोर्ट, जो इन द कोर्स ऑफ सूट या अदर प्रोसीडिंग में है, एक्सेप्ट वेयर द ऑर्डर, उस सिचुएशन को छोड़ के कि अगर एक ऐसा ऑर्डर है कि अगर वो पार्टी के फेवर में बनाया गया होता, पार्टी के फेवर में इशू हुआ होता तो केस को, सूट को, अदर प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ हो गया होता, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है जो कि एक्चुअली जो बंदा अप्लाई कर रहा है रिवीजन के लिए उसको इफेक्ट हुआ है, निगेटिवली इफेक्ट हुआ है, जुडिशियली अफेक्टेड हुआ है, प्रेजुडिस हुआ है उसको। लेकिन अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट उस ऑर्डर को जो बंदा अप्लाई कर रहा है रिवीजन के लिए उसके फेवर में पास किया होता तो अब तक केस रफा दफा हो गया होता, अब तक सूट या जो अदर प्रोसीडिंग है फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ हो गया होता। तो उस सूरत में हाई कोर्ट उस ऑर्डर को वैरी और रिवर्स कर सकती है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? तो ये रिवीजन का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप देख लेना। तो रिवीजन का कॉन्सेप्ट वहीं पे होता है जहां पे कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्चुअली एक ऐसा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया जो बाय लॉ उनको वेस्टेड नहीं था, उन्होंने जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल जो उनको वेस्टेड था फेल हो गया, एक्सरसाइज नहीं कर पाए। दूसरा, तीसरा, उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन को इलीगली इस्तेमाल किया है या विद मटेरियल इरेगुलरिटी इस्तेमाल किया है। तो हाई कोर्ट जो है इस मामले में हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस, है ना, एंड मे मेक सच ऑर्डर एज द कोर्ट थिंक्स फिट। ये रिवीजन का कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। 2 देख लेते हैं। हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट व्हिच एन अपील लाइज आइदर टू द हाई कोर्ट और टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू। अब ये कह रहा है हाई कोर्ट इस मामले में ऐसे किसी भी डिक्री ऑर्डर को वेरी और रिवर्स नहीं करेगी जिसके अगेंस्ट में आप अपील में आ सकते थे। देखो रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जब आपके पास अपील का ऑप्शन है तो आप अपील में जाओगे ना, फिर वहां रिवीजन नहीं करवाओगे आप। क्यों हाई कोर्ट के पास रिवीजन में जा रहे हो जब आपके पास अपील था? मान ले सपोज एनी कोर्ट हैज आफ्टर मैनिपुलेटिंग इट्स जुरिस्डिक्शन or the jurisdiction whatever was vested in that subordinate court, that subordinate court has not exercised in due respect or in the due of course, in due course, and you are aggrieved. So obviously if you are having option to make an appeal, then you will go and file an appeal. तो वहां पे फिर हाई कोर्ट जो अगर मान लिया रिवीजन में रिवाइज भी होते हैं ऐसे मैटर, तो हाई कोर्ट वहां पे उस डिग्री को या ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेगी और ना ही वेरी करेगी, because you are having another option, आप अपील में जाओ। A revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by the high court। लेकिन अगर कोई रिवीजन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सूट है वो स्टे हो गया है या कोई अदर प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गया है ना। जिस कोर्ट में मीन सबऑर्डिनेट कोर्ट में द सेम मैटर वाज गोइंग ऑन, द सेम सूट इज गोइंग ऑन, द प्रोसीजर ऑफ सेम सूट इज गोइंग ऑन एंड इट विल बी कंटिन्यू even though the matter has gone to the high court and the high court has call for that record, but here the court in the case in the subordinate court will be going on, तो subordinate court में केस चलता रहेगा, वो स्टे नहीं होगा, except where such suit or other proceeding is stayed by the high court, unless and until the high court stays that matter। high court ने उसको स्टे कर दिया उस proceeding को, सूट को, तब तो अलग बात है। otherwise revision का मतलब ये नहीं होता कि सूट या अदर proceeding स्टे हो जाएगा। अब एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड का मतलब ये बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, कह रहे हैं इंक्लूड्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ ए सूट और अदर प्रोसीडिंग। ठीक है, ये हमारा 115 हो गया। 115 छोटा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा नोट्स।